अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. I hope that everyone is okay. Welcome back to the lecture for design of machine elements. We'll begin with a small revision of the previous concepts. We were studying about materials last time in the last week's lecture, and we did something related with composites. Composites के बारे में हमने ये कहा था कि they are material that have two or more constituents that are blend in a way that they are combined together. The main constituent is known as the matrix, and there is also something called a discrete reinforcement material, which is embedded in the matrix. And the matrix have different types. There are different types of discrete materials as well that can be used. और उसकी जो layers बनती हैं, they can offer strength to the material. They can also offer um, strength in unidirectional strengths, या फिर different layers की वजह से उसकी fractional strength जो सी है वो बढ़ सकती है. इसके अलावा उसकी जो सी है वो physical properties, they can be as good as metals, uh, but there were also some downsides as well. Like there were issues with crack propagation, there were issues with machining, there were issues with repair of the material. इस तरह के कुछ issues थे. But on the high side, it had a very low density, relatively low density, and specific weight as well. So a very useful class of materials, but you need to be careful when choosing it with the application, क्योंकि ये application dependent है. इसकी manufacturing processes उतने ज़्यादा refined नहीं है या automated नहीं हो सकते. तो इसकी वजह से mass production के अंदर थोड़े से issues हैं. So it is mainly used where you have a high end application जहाँ पे आपको low weight और high strength जो है वो main concern है. And there were a lot of examples from the consumer goods to the transportation equipment to the aerospace equipment, um, and industrial facilities as well, including storage tanks and some environmental treatment equipment and food processing systems as well. इसी तरह से कुछ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है. इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर लाइक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो सकते हैं, वो स्विचिंग बोर्ड्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर फॉर स्ट्रक्चरल शेप्स, पैनल्स, रूफिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए हमने देखा था कि इसको इस्तेमाल किया. एंड देयर वर थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि मेन इसका जो कंपोनेंट होता है, one of the ingredients in making the composite. Those would be the polymer and the metal matrix, and the third one was the ceramic matrix composite. और इसके अलावा हमने जो अंदर reinforcement material कहे थे उसकी form जो सी हैं वो different तरह की हो सकती हैं. Like it could be a woven fabric or a continuous fiber or short strands or longer strands that are laid together, or a parallel group of strands, या मेटालिक फिलामेंट्स हो सकती हैं, या क्रिस्टल्स की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में हो सकती है. सो इट कुड बी लाइक अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग दैट आर एम्बेडेड इनटू द मैट्रिक्स, जो कि अभी हमने तीन तरह की देखी थी. और फिर जिस तरह से आप उसको अपने कंपोनेंट के साथ, अपने मैट्रिक्स के साथ मिक्स करते हो, जिस अलाइनमेंट के साथ, जिस मेथोडोलॉजी के साथ, that also affects the final qualities of the composites, including the strength in the that directional strength जो इसके कह लें mainly उसके ऊपर फर्क आता है, या fractional strength के ऊपर फर्क आता है. और किस तरह के वो materials होते हैं, they could be glass, they could be carbon fibers, they could be other types of metals like tungstens and boron. इसके अलावा it could be like graphite, uh, silicon carbide हो सकता है for higher temperatures. और हमने कुछ और special जो से थे इसके अंदर strands देखे थे, तो synthetic भी हो सकते हैं, natural भी हो सकते हैं, और उनकी कई types होती हैं और कई
कई तरह से वो मिक्स किए जाते हैं. We had a look at some of the reinforcement materials and how they are um, classified in terms of their tensile strength and specific weight. और उसके बाद हमने कुछ processing techniques देखी थी, including some videos related to how these composites are made in an industrial scale. Okay, you can have a manual or an automated layer. जिसके अंदर you basically prepare layers of matrix and reinforcement materials and you put them together manually or on a cast or a die. और उसके बाद उसको when it cures or it dries out, you take it out and then remove the extra surfaces and do the machining जो भी required होती है. There were also some things known as prepregs. Prepregs are basically uh, prepared sheets of materials, composite materials that can be put together to make a solid surface in a cast. इसी तरह से you could also do some injection molding or technique known as spray up. Spray up के अंदर आप जो होता है उसी material को spray कर देते हो cast के अंदर. There were also techniques like pultrusion where you have multiple strands and you pass them through the composite matrix material and then you shape them in a single continuous fashion. तो ये हमने कुछ इससे related videos जो सी थी वो हमने देखी थी manufacturing से related. Selection इसकी किस तरह से की जाती है? Selection would include which type of matrix material you want to use, which type of reinforcement material you want to use, and what processing method you want to use for that. But you also have to select what kind of a composite you're looking for. So it also depends on the application, like what kind of structural strength you need or what kind of tensile strength do you need. Do you need it in multiple directions or do you need it in a single direction? That also goes into the design consideration or selection of the composite materials. So as a general criteria, where low cost dominates, जब आप cheaper solution चाह रहे हो, सस्ता काम चाह रहे हो, cost main factor है. Fiberglass is generally one of the cheapest ones that is available. It's also available in many forms. तो ये glass material का बना होता है, synthetic भी हो सकता है. Polymers, polymeric जो sheets होती हैं उससे भी बनाया जा सकता है. And it's mostly embedded in a polymer matrix. Used for piping housings and low weight canisters, containers, and structural components. For a high volume application, you need an automated procedure that can be made using injection molding or extrusion. तो हमने कुछ जो manufacturing techniques देखी थी that were offering automated procedures. So the design can be made using thermoplastics. ये glass reinforcement से भी बन सकता है और इसके अंदर polymer matrix भी use हो सकती है, इसके अंदर ceramic matrix भी use हो सकती है. And for high performance, carbon fiber is usually what you are looking for. It has all the qualities that a designer desires usually. Low weight, high strength, and very high hardness as well. So it's for high-end supporting goods. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे weight is a big concern, like automotive industry के अंदर high performance cars होगी, इनके अंदर भी जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है. Normally it is also available in the form of prepregs, so you could also put it on another metallic surface. वहाँ पे उसको use कर सकते हो उसके साथ in combination with some other metals to give the strength to the surface as well. कुछ advantages से इसके वो हमने देखे थे कि the specific strength is greater than many materials, specific weight is very good. They also perform better with cyclic loading or fatigue is concerned if they are designed carefully. Impact loading के लिए थोड़ा सा इनका issue होता है
but they can be specifically designed to tune to that as well. Also, they have much higher wear resistance than some metals, so they can be as strong as metals, or sometimes in some cases even stronger than metals. So it's a very useful material, but once again there were also some downsides as well. You need to be very careful when selecting the composite uh, manufacturing techniques. इतनी common नहीं है. You may need some different machinery to do that as well. Metals are more common in their manufacturing techniques, including जो हमने कुछ देखी थी पहले, casting होगी, बहुत common है, machining होगी, बहुत common है, and there is a lot of expertise available with that as well. And in the end, there was a comparison of strength and specific modulus of some materials, including steel, aluminum, titanium, some alloys of those, and some composite materials as well. अच्छा, एक चीज और होती है कि composite materials की जो strength है वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना reinforcement material का और matrix का जो रेशियो है वो कितना है. And of course, where performance is evaluated about the composites, you're also concerned with the cost as well. So the material cost is typically higher, and then the manufacturing cost related to that as well is also sometimes higher as well. If you are looking for mass productions, you may kind of want to put your money in a technique that can be automated very easily. So if you're looking for high strength, die casting for metals is a technique that gives you much higher production rates, and it can be used with metals obviously. So it also gives you very high strength as well. There were other considerations like the operating temperature, because of the fact that the matrix material, जो अगर polymer है specifically, so it will melt at higher temperatures and it will lose its strength as well. And there was also an issue with the damage detection and life prediction of the composite materials. इसके ऊपर काफी काम हो भी रहा है. There is a whole field known as structural health monitoring. Structural health monitoring के अंदर you kind of are interested in what kind of a damage has struck, number one, where that damage is located, number two, and then you're also interested in the amount of damage that it has sustained in the form of maybe cracks or holes or whatever. And then finally, the difficult part is to predict the life of the structure. इसके बाद कितना अरसा ये safely operate हो सकता है, चलाया जा सकता है, use किया जा सकता है. So there's a whole field where you attach sensors with those structures, and then you monitor the vibrations that are produced in the structure, and then try to predict the nature of the damage, the type of damage. So that is more difficult with composites. Usually with composites, crack propagation uh, is a little different. Metals के अंदर different होती है, क्योंकि इसके अंदर layers होती हैं different, तो वो layers के अंदर crack ज़्यादा easily propagate करते हैं. And damage detection is difficult. Also, the repair is also difficult. अच्छा, आज हम क्विकली सबसे पहले देखेंगे कुछ जनरल कंसीडरेशंस है मटेरियल सिलेक्शन से रिलेटेड. सारे मटेरियल्स हमने देखे, इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स, इंक्लूडिंग कंपोजिट्स. ये तीन मेन क्लासेस थी जिसके ऊपर हमने फोकस किया. उसकी वजह ये थी कि दीज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन मशीन एलिमेंट्स. इसके अलावा भी और मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लाइक ग्लास हो गया, सिरेमिक्स हो गए. वो एक डिफरेंट क्लासेस ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मली मशीन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, जैसे कि गेयर्स हो गए, शाफ्ट्स हो गई, पिन्स हो गई, कनेक्टिंग जो उसके जॉइंट्स होते हैं, इन चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल नहीं किए जाते.
So now tasked with material selection, आपको क्या करना चाहिए कि जब आपके पास कोई एप्लीकेशन हो जिसके लिए आपने कोई मटेरियल सेलेक्ट करना हो, तो वी हैड सम एग्जांपल्स। इससे पहले हमने कुछ केस स्टडीज देखी थी इंक्लूडिंग द डिजाइन ऑफ अ प्लायर एज वेल। So the process of material selection would begin with a very clear understanding of the function and the design requirement, या उसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो उसका भी। तो आपको ना सिर्फ पूरे प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो आप डिजाइन कर रहे हो उसका भी पता होना चाहिए। बिकॉज द वे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फिक्स together in a product is also to be considered, and the way they interact with each other is also to be considered. For example, if you use different materials in a single product, there may be problems when they expand, and they may have different coefficients of thermal expansion. तो उनका रेट ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीट वो फर्क हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, ये कंपोनेंट्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं। So you need to have an idea of the whole product as well as the individual components that you're designing in the system, ताकि आप उसके अंदर से accurately material को select कर सको। तो as a designer आपको क्या consider करना चाहिए? Functions उनके, कि वो किस तरह के components हैं, क्या उसके अंदर काम करेंगे। उसके बाद आप देखो shape उसकी क्या होगी। Shape is also a big factor in deciding upon the manufacturing process related to the material. तो मटेरियल सिलेक्शन के अंदर ना सिर्फ मटेरियल इटसेल्फ जो है वो जरूरी होता है, बल्कि उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बहुत जरूरी होता है। आपने उसको भी डिफाइन करना है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन रेट डिसाइड करते हो, तो दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन द कंपोनेंट शेप आल्सो प्रीडोमिनेट्स द डिजाइन एस्पेक्ट एज वेल। इसके बाद आप उस मटेरियल को भी ज़ाहिर है देखोगे जिससे वो कंपोनेंट बनेगा। So the point 3 is that the material that you are going to be selecting also has to be looked into carefully. There are different variants of the same material, including alloys, including different compositions, including different types of commercially available shapes and sheets as well. तो ये कुछ चीजें हैं, 3-4 चीजें जो कि आपने सबसे पहले जहन में रखनी है when you are deciding on selecting a material. So the function of the component, the shape of the component, the material that you want to select, and the manufacturing process, and the general overall requirement. एक ओवरऑल स्कीम जो सी रिक्वायरमेंट की वो क्या हो सकती है, उसके अंदर आप क्या क्या चीजें देखना चाहोगे जब आपको कोई टास्क दिया जाए। जैसा कि हमने टायर से रिलेटेड सोचा था, उसके लिए आपने कोई मटेरियल सेलेक्ट करना है। So you would be looking at the nature of forces being applied to the component. बड़ा ही important point है। Not only the nature of forces, किस तरह की forces हो सकती हैं, और आज इसके बारे में हम मजीद डिटेल में देखेंगे कि किस तरह की forces और stresses लग सकती हैं। इसके अलावा कि कितनी उसके magnitudes हैं, forces कहाँ पे लग रही हैं, क्या magnitude उनका हो सकता है, और कितनी allowable deformation है जो कि आप अपने component को दे सकते हो। Allowable deformations in elastic region obviously in most cases. तो कितनी इलास्टिक लिमिट थी आपके कंपोनेंट की, और उसके ऊपर उसके मुताबिक कितनी फोर्सेस जो सी वो लग सकती हैं, बिकॉज फोर्सेस प्रोड्यूस स्ट्रेन एंड दोस स्ट्रेन कैन डैमेज द कंपोनेंट एज वेल। फिर उसके बाद उसका इंटरफेस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, हमें ये पता होना चाहिए किस तरह से वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ उसी प्रोडक्ट के अंदर जुड़ेगा या अटैच होगा। Then the environment would be obviously defining your weather conditions,
जिसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस आ सकती है। आपको देखना पड़ सकता है कि किस तरह के वो वहाँ पे टेम्परेचर रेंज किस में ऑपरेट करेगा वो। ऑल दीज थिंग्स काइंड ऑफ lay on heavily on your design. उसके बाद मॉइस्चर हो सकता है। मॉइस्चर समटाइम्स is different conditions in plastics. इसी तरह से आपने उसकी फिटिंग देखनी होती है कि is it going to be a loose fit, is it going to be a press fit, is it going to be a shrink fit, किस तरह की आपने उसके अंदर फिटिंग्स जो सी हैं वो डिजाइन करनी है। Obviously you're also interested in physical size and the weight of the component. Physical size कितना होगा, that also determines the manufacturing process as well. It also determines the input raw material as well. तो ये बहुत सारी चीजों के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर वेट आपको कंपोनेंट का, समटाइम्स देयर आर अपर लिमिट्स ऑन द वेट ऑफ द कंपोनेंट that drive you to select a certain material. So if you have a limit on the weight and you're looking for a very low weight design, तो उससे ऊपर जो सा होगा आपको उसके मुताबिक चूज करना होगा। अब फिर eventually once the product has been manufactured, it has to be of a certain aesthetic look. अगर आपने उसको sell करना है, so from a sales point of view, it should have certain aesthetics accompanied with it as well. इसके अंदर आपको किस तरह की फिनिश चाहिए, सरफेस किस तरह की दिखनी चाहिए, do you need an extra coating of paint on top of it, so you need to balance the cost for that as well. ऐसा तो नहीं है कि आपने जो मटेरियल प्रपोज किया है उसके बाद उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी हो, उसके बाद उसके ऊपर कोई पेंटिंग होनी हो फॉर अ बेटर सरफेस फिनिश, और अगर आप उसकी जगह कोई और मटेरियल चूज करते, यू मे हैव गॉटन अवे विदाउट एनी ऑफ दोस सरफेस ऑपरेशंस। तो इस तरह की चीजों को भी नोसा होता है, वो देखना पड़ता है। तो एस्थेटिक्स आर important as well. And at every stage, you are looking for the cost targets. The cost is also a very huge factor. And at every stage of selection, you are interested in minimizing the cost while maintaining the performance of the structure or the component. And also, the manufacturing process is available. The same components can be made using different manufacturing processes. आपके पास कौन सा ज्यादा आसानी से अवेलेबल है, आपकी कंपनी की किस में एक्सपर्टीज है, आपकी लोकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अवेलेबल है आपके पास। डू यू हैव टू गेट इट डन फ्रॉम अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज, या आप उसको अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपनी लोकेलिटी के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हो या कर सकते हो। ये चीजें भी इवेंचुअली आपको उसके अंदर देखनी पड़ती हैं। फिर हमने मटेरियल से रिलेटेड शुरू में जो बात की, फोर्सेस और स्ट्रेसेस और उसके ऊपर जो डिफरेंट चीजें हम देखते हैं, तो हमने चैप्टर 2 के शुरू के अंदर कुछ चीजें देखी थी ऐसी। सो लुकिंग एट मटेरियल प्रॉपर्टीज दैट आर यूजफुल इन सिलेक्शन, जो कि उसकी लिमिट्स को डिफाइन करती हैं। सो दोज मटेरियल प्रॉपर्टीज आर फर्स्टली द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जिसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो सकती है उसकी टेंसाइल टेस्ट के अंदर, या इफ इट्स डक्टाइल मटेरियल सो यू वुड बी इंटरेस्टेड इन द यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद इफ it has to undergo compressive loading या उसके ऊपर cyclic loading होगी, then you are also interested in the compressive strength of the material as well. If it has to go into the cyclic loading and it's a frequent cyclic loading, so you are also very interested in the fatigue strength as well. ये आज हम देखेंगे क्या होती है, ये अभी तक हमने नहीं देखी। Also shear strength and other types of strength of the materials, the data is available for different materials. हमें ये सबसे पहले जो होता है वो देखना होता है in terms of material properties. Then stiffness and elasticity of the material or the fractional fractional modulus, कितना जो सा होता है उसके अंदर बेंडिंग हो सकती है, कितना इलास्टिक है मटेरियल, कितना जो सा है वो स्ट्रेन को वो सह सकता है, and then without going through plastic deformation. तो ये चीजें भी जो सा है वो
कंसीडर करना जरूरी है. Then you are also interested in the physical parameters like the weight और specific weight, volume कितना हो सकता है, ये density के बारे में हो सकता है आपको देखना पड़े. इस तरह की चीजों के बारे में आपको वो देखना पड़ सकता है. Another important parameter is ductility. For some manufacturing operations, you require a ductile material, including some drawing operations, जो कि brittle materials के ऊपर नहीं हो सकते. So for some operations and for some types of applications, you need a ductile material. For others, you need a brittle material. फिर उसके बाद उसकी toughness या impact energy. If you are expecting impact loads on the material, you would be selecting materials with high impact energy. ऐसे मटेरियल्स जो कि इम्पैक्ट्स को सह सकें, उसकी वेयर रेजिस्टेंस आप देखते हो, उसकी आप सरफेस टफनेस देखते हो. इस तरह की चीजें जो सी होती हैं वो जरूरी होती हैं. फाइनली क्रीप के बारे में हमने देखा था कि इवन विद इन द लोड रेंजिंग which is within the yield strength of the material, sometimes at elevated temperatures or normal temperatures the material elongates under the loading. उसको हम क्रीप कहते हैं. आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज के अंदर चेंज आता जाता है लोड की वजह से, कॉन्टिन्यूस लोडिंग की वजह से. तो क्रीप परफॉर्मेंस डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल by different manufacturers of the material, तो उसको भी हमें देखना होता है. फिर corrosion resistance, compatibility with the environment, including the temperature data of the equipment of the material. टेम्परेचर के साथ किस तरह से वो चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किया है, इफ इट हैज टू बी आउटसाइड, इंस्टॉल्ड आउटसाइड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज होगा या हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करना है. ऑल्सो यू आर लुकिंग एट द कॉस्ट फॉर द मटीरियल एंड द कॉस्ट टू प्रोसेस द मटीरियल. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की क्या कॉस्ट होगी, मटीरियल की अपनी क्या कॉस्ट होगी, फिनिशिंग की क्या कॉस्ट होगी, असेंबली की क्या कॉस्ट होगी. सो यू आर लुकिंग इनटू दोस डिटेल्स एज वेल. फिर ये सारा कुछ देखने के बाद you kind of have to make a list of the candidate materials that can be used, and then you select from out of those the best one जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, ये सबसे ज्यादा आसान है. ठीक है, तो आपने ये देखा कि इतनी सारी चीजों के दरमियान में से मटेरियल को सेलेक्ट करना, इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल. आपको मटेरियल्स की अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड किस तरह के हम आपके पास सप्लायर्स अवेलेबल हैं मटेरियल्स के लिए. कॉस्टिंग का पता होना चाहिए आपको. तो इसके लिए it requires a lot of experience sometimes, but the process can be made very easy with some techniques, and the process can be simplified with some softwares like the CAD modeling softwares, and you can also create Excel sheets for your materials. आप उनको maintain कर सकते हो. So once you have gone through selection process, आप उसके results को save कर सकते हो, अपने एक repository बना सकते हो, so that the next time you go through that, uh, the uh, the actual process becomes a lot simpler. So it takes some time, but you can get better with it with time as well. So एक criteria rating process है जो कि बुक में propose किया गया है. This is one of the way in which you can after selecting a material, a list of materials, आप 5 6 7 मटेरियल्स जो कि पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, जब आप उनको सिलेक्ट कर लो तो उसमें से किस तरह से आपने रेट करना है उनको, ये नंबर 1 पे कौन सा अच्छा है, नंबर 2 पे कौन सा अच्छा है, नंबर 3 पे कौन सा अच्छा है, और आप उसके मुताबिक उसके अंदर से मटेरियल सिलेक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो दैट हैज बीन गिवन एज डिसीजन एनालिसिस मैट्रिक्स. एक एक मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ डिसीजंस को एनालाइज कर लेते हो. और इसके लिए एक एग्जांपल चूज की गई है जी, विच इज द प्रोडक्शन ऑफ अ सेट ऑफ 300 व्हील्स. The wheels
बनाने हैं, 300 की तादाद में बनाने हैं, ये भी दिया हुआ है, और इनकी एप्लीकेशन भी दी हुई है फॉर यूज विद स्पेशल मटेरियल हैंडलिंग कार्ड्स। तो व्हील्स डिजाइन करने हैं, उसके लिए कैंडिडेट मटेरियल्स ढूंढने हैं, एंड द व्हील्स हैव टू बी यूज्ड विद मटेरियल हैंडलिंग कार्ड्स, और प्रोडक्शन क्वांटिटी जो सी है वो 300 है उसकी। So I'm going to open figure 2-30 from the book. It's lengthy one, तो उसको मैंने slides पे include नहीं किया। और हम वहां से इसको देखते हैं कि किस तरह से ये एक डिसीजन मैट्रिक्स जो है वो बनाया गया। लें जी, so this figure 2-30, this is basically a decision analysis chart example for for a set of 300 wheels for use with material handling carts। अब मुख्तलिफ चीजें हमने देखी कि क्या मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी के वाले सेक्शन के अंदर शुरू में there are some desired properties that you need to look at. For example, yield strength, modulus of elasticity, ductility, density, corrosion resistance, material cost, processing cost, ये हमने कुछ चीजें अभी डिस्कस की थी। और कैंडिडेट मटेरियल्स इसके लिए जो है जिंक है और टाइटेनियम है। आप बता सकते हैं कि ये यहाँ पे इसके अलावा और कोई मटेरियल यूज किया जा सकता है व्हील्स बनाने मटेरियल हैंडलिंग कार्ड्स के लिए? सर रबड़ मटेरियल। रबड़ भी यूज किया जा सकता है। और सर वैसे इसके यूजेस कहाँ पे होगा, मतलब कि ये रोड पे यूज होंगे या सिर्फ ओनली फैक्ट्री के अंदर यूज होंगे? मटेरियल हैंडलिंग कार्ड्स, अगर आपने अभी अपने ऑटोमेशन के कोर्स में नहीं देखा तो मटेरियल हैंडलिंग कार्ड्स आर नॉर्मली यूज्ड विद हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। दे कुड बी मैनुअली कैरिड या ऑटोमेटेड भी होती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की मिलती हैं मटेरियल हैंडलिंग कार्ड्स। मे बी यू हैव गॉन इन सम सुपर स्टोर, सम सुपरमार्केट, वहाँ पे भी इनका जो सा होता है वो इस्तेमाल होता है टू टेक द पैलेट्स ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वेयर हाउस टू द मेन डिस्प्ले एरिया। या इंडस्ट्री के अंदर भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जिसमें सिर्फ FMCG इंडस्ट्रीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इंक्लूडिंग यूनिलीवर, नेस्ले, इस तरह की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, PTC, यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है इनका मटेरियल्स को, पैलेट्स को, बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मटेरियल्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैनुअली मूव भी की जा सकती हैं, ऑटोमेटेड भी होती हैं, स्प्लिट भी होती है कि यू काइंड ऑफ हैव अ मोटराइज्ड वन, लेकिन उसको आप जो सा होता है वो साथ में गाइडेंस मैनुअल दे रहे होते हैं। तो एनीवेज, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेटिंग्स की तो हम ये अज्यूम करते हैं द फ्लोर इज बीइंग यूज्ड। फ्लोर वो जो होता है सीमेंटेड हो सकता है, वो टाइल्ड हो सकता है, किसी भी तरह का फ्लोर हो सकता है। अब मटेरियल हैंडलिंग के अंदर जो थोड़ा सा इश्यू होता है रबड़ के साथ वो ये होता है कि इट इज नॉर्मली गोइंग टू बी एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट लोड्स। उसके ऊपर जो सा होता है वो नीचे उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ डेब्री भी हो सकती है that may damage that rubber। तो अमूमन इन मटेरियल हैंडलिंग कार्ड्स के ऊपर मेटालिक व्हील्स होते हैं या मेटालिक व्हील्स होते हैं और उसके ऊपर कोई कोटिंग होती है किसी और मटेरियल की, तो टू प्रोवाइड गुड ट्रैक्शन टू द सरफेस। साइक्लिक लोडिंग भी एक एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली। मटेरियल्स जब रोटेट करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ साइक्लिक लोडिंग। इसके अलावा कंडीशंस के अंदर अगर हम देखें, इट मे बी ऑपरेटेड इन वेट कंडीशंस, उसका कांटेक्ट होगा पानी के साथ भी हो सकता है, ज़मीन पे पानी बिल्कुल हो सकता है, मॉइस्चर भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
और ऑल्सो देयर इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल सेटिंग, तो ये बाहर भी ऑपरेट हो रही है, धूप के अंदर भी, छांव में भी है, तो इट मे हैव टू ऑपरेट इन डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स एज वेल। तो जो हमने प्लास्टिक्स देखे थे, नॉर्मली देयर वर प्रॉब्लम्स एंड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स इन स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर्स एंड इम्पैक्ट लोडिंग्स। इसी तरह से यही मसला रबर्स के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सा है वो इस तरह की सेटिंग्स के अंदर हम कहते हैं कि चलो द प्राइम कैंडिडेट्स फॉर दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल आर गोइंग टू बी मेटल्स। अब मेटल्स के अंदर से क्या हो सकते हैं? मेटल्स के अंदर से जो ब्रॉडर कैटेगरीज हमने देखी थी, उसमें स्टील था, एल्यूमिनियम था, मैग्नीशियम था, जिंक था, टाइटेनियम था, ये ब्रॉडर कैटेगरीज थी। इसके अंदर से फर्दर फिर इसके अलॉयज हैं जो जिनमें से आपको चूज करना पड़ सकता है। अब अगर हम रेट करें इन डिफरेंट कैंडिडेट मटेरियल्स को, मेटल्स को, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 फॉर एवरी डिजायर्ड प्रॉपर्टी इंडिविजुअली, जिसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, डेंसिटी है, करोजन रेजिस्टेंस है एंड सो ऑन, और इसके अलावा कॉस्ट भी आ जाती है। तो उसके मुताबिक आपने हर कैंडिडेट मटेरियल को आपने लिस्ट डाउन करना है। अच्छा, इसके अंदर कुछ कंपोजिट मटेरियल्स भी यूज हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मेटल एक्सल और क्या नाम है, मेटल फ्रेम और उसके ऊपर रबराइज्ड मटेरियल, ये भी हो सकता है। तो इसके आगे आप कैंडिडेट मटेरियल्स और बट इसके अंदर कैंडिडेट मटेरियल्स है और उनकी इंडिविजुअल जो है वो ग्रेडिंग की गई है फॉर एवरी डिजायर्ड प्रॉपर्टी। तो यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की बहुत अच्छी है, एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप एज अ डिजाइनर खुद ये चीजें आप रेट कर रहे हो, ये कहीं दी नहीं गई होती, ये आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए अपने हिसाब से खुद इसको रेट करना है। मैग्नीशियम सॉफ्टवेयर मटेरियल है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो इट हैज बीन गिवन अ 3। जिंक इज अ लिटिल हार्डर, ऑलमोस्ट एज क्लोज टू एल्यूमिनियम, तो इनकी 6 और 7 के ऊपर है। टाइटेनियम ऑब्वियसली द हार्डेस्ट एंड सो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 के ऊपर है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ज्यादा है बाकियों की निस्बत, और यहाँ पे भी ट्रेंड वही है कि मैग्नीशियम का सबसे कम है एंड सो ऑन। डक्टिलिटी स्टील की एक्सीलेंट होती है। डक्टिलिटी इसलिए इस एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग सम इम्पैक्ट लोडिंग, तो इसकी इम्पैक्ट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अमूमन डक्टाइल मटेरियल्स की ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम उसके बाद है। टाइटेनियम इज अ लॉट हार्डर, वो जरा थोड़ा सा ब्रिटल साइड पर चला जाता है, लेकिन बहुत ब्रिटल नहीं होता, लेकिन स्टिल मच ब्रिटल देन स्टील। इसी तरह से डेंसिटी के बारे में अगर हम कंपेयर करें, मैग्नीशियम इज गोइंग टू हैव द लीस्ट स्ट्रेंथ, but it also is the lightest of all of the materials available, तो डेंसिटी इसकी सबसे कम है, तो इसलिए इसको इसके अंदर जो है वो नंबर ज्यादा मिले। कोरोजन रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम की और टाइटेनियम की सबसे अच्छी है। स्टील हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन वेरी स्पेसिफिक वेज, उसके अंदर कंटेंट उसका जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है फॉर इट टू बी रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड रस्ट, तो उसके ऊपर जो है वो इसको कम नंबर मिले। फिर मटेरियल कॉस्ट जो कि कम से कम होनी चाहिए, सो लो इज बेटर। स्टील इज वेरी कॉमन, आयरन स्टील इसकी प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन है, बहुत सारी शेप्स के अंदर अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसकी कॉस्ट के अंदर जो है हम स्टील को सबसे ज्यादा नंबर दे रहे हैं। टाइटेनियम हैज द लोएस्ट नंबर्स क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में अगर देखा जाए, तो स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर कास्टिंग और बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि चीपर है। मैग्नीशियम और जिंक से रिलेटेड जो टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड है इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए वो ज़्यादा होते हैं, सो दैट इंक्रीजेस द प्रोसेसिंग कॉस्ट। और टाइटेनियम की मशीनिंग और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफिकल्ट है। सो दिस गिव्स यू अ टोटल नंबर्स, तो उसकी मदद से आप जो है वो रैंक कर सकते हैं अपने डिफरेंट मटेरियल्स को। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर आपने अब इसके अंदर से डिफरेंट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो द सेकंड सेक्शन इज नोट्स अबाउट द प्रपोज्ड मटेरियल्स। अब आपने यहाँ पे भी जो है वो अपने मटेरियल की
सिलेक्शन को जो सा वो मजीद बेहतर आप कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कॉलम शोज the yield strength of the material, the second one is the modulus of elasticity, the third one is percentage elongation जो कि ductility को quantify करती है, the fourth one is density, the fifth one is corrosion resistance, and then the material cost and the production cost. ये ऊपर जो भी हमने बातें की उसकी थोड़ी सी क्वांटिफिकेशन है. किस तरह से कि यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है. अब yield strength of steel जो कि राउट स्टील है SAE3140, OQT 1000 मींस इसके अंदर टेम्परेचर के ऊपर 1000 के ऊपर जो है इसकी वो थर्मल ट्रीटमेंट की गई है, तो वो स्पेसिफाइड है. इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो है स्पेसिफिक ग्रेड यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया गया है, मैग्नीशियम का भी जो है गिवन है, जिंक का भी गिवन है, टाइटेनियम का भी गिवन है. तो यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ जिसकी हमने ऊपर नंबरिंग की थी वो उसकी एक्चुअल वैल्यूज दी हुई है. तो टू मेक द डिसीजन सिंपल फॉर एवरीवन एल्स, आपको तो शायद ये चीजें पता हो, लेकिन जिनको आप पिच कर रहे हो आइडिया, जिसको आप बता रहे हो इस मटेरियल के बारे में कि आपने किस बेसिस पे सिलेक्शन की है, तो वो यहाँ से वाज़ेह हो जाती है. So the notes about the proposed material contain the actual values based on which you are putting in those numbers in the first section. जो पहले सेक्शन में आप नंबर्स बना रहे थे वो उसमें यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये जो रेटिंग्स थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं about the ductility, about the density, about the modulus of elasticity and so on. फिर यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई. So application के अंदर wheel hub for 4-wheeled cart used in material handling within a factory environment. और क्वांटिटी आ गई इसकी. फिर दूसरी कंसिडरेशंस आ गई लाइक वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, लोडिंग कंडीशंस आ गई, लाइट शॉक लोडिंग हो सकती है, मॉडरेट लेवल्स ऑफ लोड हो सकते हैं, फिटिंग कंडीशंस आ गई. तो ये उसका क्योंकि व्हील हब है इसके ऊपर जो है वो पॉलीमर की कोटिंग भी हो सकती है, इस तरह से मैंने कहा था. एंड फाइनली सम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए, हाई स्टिफनेस होनी चाहिए, लो वेट होना चाहिए, लो ओवरऑल कॉस्ट होनी चाहिए, सर्विस ऑपरेशनल कॉस्ट लो होनी चाहिए, एक्विजिशन कॉस्ट लो होनी चाहिए एंड सो ऑन. तो बेस्ड ऑन ऑल दिस व्हाट वुड यू डिसाइड ऑन फॉर द व्हील हब? ऑब्वियसली यहाँ पे स्टील जो है वो नंबर 1 कैंडिडेट है फॉर मेकिंग दोज व्हील हब्स. ठीक है, जिसके अंदर से आपने कॉस्ट भी देखी, आपने परफॉर्मेंस भी देखी, आपने उसके जो से थे वो डिफरेंट तरह के उसके अंदर एप्लीकेशंस के पैरामीटर्स को भी कंसीडर किया, एंड स्टील कम्स आउट ऑन टॉप बेस्ड ऑन दोस. फिर इसके अंदर से आपने कुछ असल में चीजें मजीद सोचनी होती हैं कि लाइक ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ इक्वल वेटेज, क्या सारे क्राइटेरियाज आर द जो आपने पैरामीटर्स सोच के मटेरियल को डिसाइड किया, क्या सारों की बराबर वेटेज है कि नहीं है, या स्ट्रेंथ की आप ज्यादा वेटेज देंगे? आपको हाई स्ट्रेंथ जो है वो बहुत डिजायरेबल आपकी प्रॉपर्टी है अपने डिजाइन के अंदर. अगर सारों की इक्वल वेटेज नहीं है तो फिर आपको वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी अपने फाइनल नंबरिंग के अंदर. आप ये भी कह सकते हो कि बाकी सारे क्राइटेरियाज के नंबर 10 है, स्ट्रेंथ के नंबर 20 है, और उसके बाद जो भी फाइनल मार्किंग होगी उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो यू कैन पुट a heavier emphasis on some of the criterias. For example, if you are banking heavily on the cost, अगर cost effectiveness होना बहुत ज़रूरी है आपके डिज़ाइन के अंदर, तो आप कॉस्ट को ज़्यादा नंबर दे दो वहाँ पे, उसके मुताबिक जो है मटेरियल सिलेक्शन को बैलेंस कर लो. फिर इसके अलावा आप ये देखोगे कि क्या corrosion रेजिस्टेंस या इस तरह की जो पैरामीटर्स जहाँ पे कम नंबर मिल रहे हैं आपके फर्स्ट मटेरियल को जो आपने सेलेक्ट किया है, क्या उसको आप बैलेंस कर सकते हो? उन कम नंबरों को बढ़ा सकते हो किसी एडिशनल कोटिंग के थ्रू, किसी एडिशनल सरफेस ऑपरेशन के थ्रू, किसी एडिशनल डिजाइन ऑपरेशन के थ्रू, सेकेंडरी प्रोसेसेस के थ्रू. तो क्या कोरोजन रेजिस्टेंस इस केस में हमने देखा था कि स्टील की कम थी, उसमें नंबर कम थे, उस नंबरों को किस तरह से आप बढ़ा सकते हो? और
उस प्रोसेस को करने में आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो सी है वो किस तरह से बढ़ेगी. Is it worth increasing the corrosion resistance of the wheels, uh, putting it through some other processes, secondary processes? क्या उसकी वजह से फाइनल कॉस्ट तो नहीं ज्यादा हो जाएगी स्टील के लिए? फिर इसी तरह से आप ये चीजें देख सकते हो बाकी मटेरियल्स के लिए भी. लाइक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इज इट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर? इफ यू लुकिंग एट एल्यूमिनियम की कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, उसकी कॉस्ट बड़ी अच्छी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में भी बड़े अच्छे नंबर हैं. सो इट्स द सेकंड कैंडिडेट दैट यू मे लुक इनटू. लेकिन उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इतना अच्छा नहीं है. तो क्या आप उसको फिर भी इस्तेमाल कर सकते हो? डू यू पुट मोर एम्फेसिस ऑन दैट इन टर्म्स ऑफ योर डिजाइन? उसकी वेटेज ज्यादा तो नहीं करनी कहीं आपने? इसकी वजह से क्या डिजाइन होगा ओवरऑल, क्या कॉस्ट होगी इस सारे प्रोसेस के लिए अगर आप एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हो अपने व्हील्स के डिजाइन के लिए? कहीं उसकी लोअर वेट और लोअर डेंसिटी स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं है? कहीं कहीं बहुत ज्यादा एडवांटेज तो नहीं है? वेट और डेंसिटी के ऊपर आपने ज्यादा एम्फेसिस तो नहीं डालना? तो इस तरह की सारी जो सी कंसिडरेशंस हैं आपको बाद में भी सोचनी पड़ती हैं. तो मटेरियल सिलेक्शन हो गया, डिजाइन हो गया, ये सारे प्रोसेसेस जिस तरह से मैंने शुरू में अर्ज किया था कि आइटरेटिव प्रोसेसेस हैं. बार बार एक को करना पड़ सकता है. एंड देन यू फाइनली रिफाइन योर वर्क फ्लो और उसके अंदर आप जो है वो बेहतर तरीके से मटेरियल चूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये आंसर्स क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव हैं. ये एक डिजाइनर की अपनी डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो इन चीजों को किस तरह से हैंडल करता है. एक एज अ डिजाइनर यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मटेरियल्स. तो आपको इस बारे के अंदर जो सा होगा वो खुद से डिसीजन लेना होगा. एंड विल डू सम केस स्टडीज along the way. We'll be doing some we'll be looking into some examples and assignments आपको जो eventually. अच्छा, फिर कुछ जनरल गाइडलाइंस हमें मिल जाती हैं मटेरियल से रिलेटेड बाय देयर स्पेसिफिक वेट और रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस रिलेटिव डेंसिटी. तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ्स अवेलेबल हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो कि हमें मटेरियल सिलेक्शन के अंदर मदद दे सकते हैं. So this figure 2-31 is relative strength versus relative density. कि स्ट्रेंथ और उसकी वेट कर जो एक तरह से आप कह लो कि पैरामीटर को अगर कंबाइन कर लो, उसकी रेशियो बना लो, तो वहाँ क्या मटेरियल सिलेक्शंस अवेलेबल है. सो दिस इज द लॉगरिथमिक ग्राफ, स्केल लॉगरिथमिक है. फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल फॉर्म्स, पैकिंग फॉर्म्स जिस तरह से हो गए, इस तरह के मटेरियल्स बहुत कम डेंसिटी है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम है. ठीक है, सो दे आर एट द बॉटम लेफ्ट हाफ ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस चार्ट. फिर रिजिड फॉर्म्स हैं, कुछ वुड के ग्रेड्स हैं जो कि दरमियान में करके आ रहे हैं यहाँ पे. इलास्टोमर्स हैं, कुछ पॉलीमर्स हैं जिनकी कुछ अच्छी स्ट्रेंथ भी है और उनका वेट भी कम है. तो ये पॉलीमर्स यहाँ पे करके आ रहे हैं. सो इफ यू आर लुकिंग एट मटेरियल्स विद मीडियम स्ट्रेंथ एंड लो वेट, तो आप पॉलीमर्स और इलास्टोमर्स को यानी कि प्लास्टिक्स को आप प्रेफर कर सकते हो. लेकिन आप इफ यू आर लुकिंग एट हाई स्ट्रेंथ, तो आप देख रहे हो कंपोजिट्स, सिरामिक्स और मेटल्स जो से हैं ये हाई स्ट्रेंथ वाली साइड पे, ये वाई एक्सिस के ऊपर एलिवेटेड है, वाई एक्सिस के ऊपर आगे हैं. लेकिन इनकी डेंसिटी के लिहाज से अगर आप इनको रेट करना चाहो तो एल्यूमिनियम जो सा है ये एक्स एक्सिस पे टाइटेनियम से पीछे है. इसका ये मतलब है कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो सी है वो टाइटेनियम से कम है. ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये स्ट्रेंथ के अंदर नीचे है, वाई एक्सिस पे नीचे है इसका सेक्शन जो है, तो इट्स लिटिल लोअर ऑन द स्ट्रेंथ. तो इस तरह से आप थोड़ा सा जो है वो एक अच्छा एस्टिमेट जो है वो लगा सकते हो. मटेरियल सिलेक्शन के अंदर आपको थोड़ी सी इस तरह से हेल्प हो सकती है. फिर देयर इज आल्सो समथिंग, एक और ग्राफ भी गिवन है, व्हिच इज रिलेटिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वर्सेस रिलेटिव डेंसिटी.
इलास्टिसिटी को डेंसिटी के साथ रिलेट किया गया। वंस अगेन इट्स अ लॉगरिथमिक स्केल, और जो मटेरियल डेंसिटी में कम होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर पीछे होगा, और जो मटेरियल इलास्टिसिटी में कम होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट इलास्टोमर्स आर नॉट वेरी, they do not have a very high strength in terms of their elasticity, लेकिन यहाँ पे, or as it was pretty obvious I believe, ceramics are one of the hardest materials available, brittle होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो से मेटल्स हैं, ये जो से हैं वो इनकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी जो डेंसिटी है रिलेटेड टू दैट वो भी साथ में दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दिस केस। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें अवेलेबल होती है दैट कैन help us in selecting a material based on the type of application, specific type of application. So this was all about chapter number 2. We'll take a small break, 3 to 5 minutes. इसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे with the new chapter. आज मैं चाह रहा हूँ कि हम ये material selection और इससे related जितने processes हैं उसको खत्म कर लें. From the next time round, we'll try to work with design of belt systems. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा शुरू करते हैं. Today's lecture, the second part of today's lecture is about design for different loading conditions. Materials हमने देख लिया, material selection देख लिया. अब हम देखेंगे किस तरह से आप design considerations देखोगे या करोगे for different loading conditions that could happen for your product, या उसके लाइफ टाइम के अंदर किस तरह की लोडिंग कंडीशंस हो सकती हैं, किस तरह से उसको आपने केटर करना है. So basically we are building up on the basics of what we need for design of machine elements, including belts, gears, shafts, pins, bearings, इस तरह की चीजों के लिए जो हमें नॉलेज रिक्वायर्ड है उसके ऊपर अभी तक हम बिल्ड अप कर रहे हैं. So in today's lecture we'll discuss about causes of failures in machines, stresses और deformations के बारे में देखेंगे. So mechanics of material का एक revisit है थोड़ा सा जल्दी से. Send some general design guidelines for machine parts. So before we begin this, I want to hold a discussion for now. What kind of material failures have you observed in consumer products? घर में किसी चीज के अंदर आपने कोई failure का पार्ट टूट गया, फेल कर गई हो, किस तरह का फेलियर था, किस तरह की लोडिंग कंडीशंस थी, क्या रीजन था उसका, कोई एग्जांपल दे सकता है आप में से? सर क्रैक हो जाती है कुछ चीजें, क्रैक हो. फॉर एग्जांपल सर, अगर हम पेन की एग्जांपल ले लें, पेन की निब की, तो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं काफी अरसे से, तो एक टाइम आता है उसकी निब से जो मटेरियल होता है प्लास्टिक, वो टूट जाता है. वो ड्यू टू मोर लोडिंग की वजह से टूट जाता है, क्रीप हो जाता है वहां से. अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आपने एग्जांपल दी जी पेन की, आपने कहा कि जी पेन की जो निब के आगे से जो उसका जो सेक्शन होता है, इट क्रैक्स, तो क्रैक हमारा जो है वो फेलियर है, और आपने उसके अंदर ये इसकी वजह दी एडिशनल लोडिंग, एक्स्ट्रा लोडिंग. यस सर. अच्छा जी. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर पेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट डिजाइंड फॉर इम्पैक्ट लोडिंग्स. तो बाकी तो आपका जो नॉर्मल एवरीडे या राइटिंग की जो लोड्स हैं उसको तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इफ यू इफ देयर इज एन इम्पैक्ट लोड, उसको आप किसी जगह पे मारते हो, स्ट्राइक करते हो, तो यहाँ गिरता है इन सम केसेस,
तो क्रैक्स में डेवलप एंड दे फर्दर प्रोपोगेट एंड देन टाइम कम्स जो कि पेन आपको नोसा होता है वो आगे से टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। तो एडिशनल लोडिंग इसका एक जो सा होता है वो हो सकता है। तो रीजंस भी इसकी वजह से ये है कि यू आर पुटिंग इन मोर लोड देन इट वाज डिजाइंड फॉर। और इसके अलावा कोई और सिनेरियो कोई बता सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर घरों में अगर चारपाई के ऊपर अगर 5-6 लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे तो काफ़ी वजनी, तो उससे भी चारपाई की बास टाइम उसकी वजह से होती हैं, ये थोड़ा फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, टूट जाती हैं चारपाई वगैरह, क्रैक्स आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चारपाइयों की बात की इन्होंने। चारपाई के अंदर इफ इट्स मेटालिक वन, अगर उसका फ्रेम मेटालिक है, उसमें ज्यादा लोग बैठ जाएं। अब लोगों के बैठने को अगर सिर्फ बैठे हैं तो उसको आप जो सा है वो अगर लोग बैठे हैं सिर्फ तो उसको आप स्टैटिक लोड एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप इसको एडिशनल लोड जो सा है इसके अंदर आप कसूरवार ठहरा सकते हो। So putting in more load than what it was designed for, it may lead to failure। और वो फेलियर किस तरह का हो सकता है, इसके अंदर जो सा होता है वो यील्ड हो सकती है इफ इट्स मेटालिक। अगर वो लकड़ी की है तो इट में ब्रेक। और इसके अलावा अगर ये है कि बहुत ज्यादा 2-3 बंदे चढ़ के ऊपर छलांग मारें, इट्स एन इम्पैक्ट लोडिंग, उसकी वजह से भी जो सा उसमें डैमेज हो सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर अमूमन आपने देखा होगा ख़वातीन जब ये इस्तेमाल करती हैं, ब्लेंडर्स हो गए या ग्राइंडर्स हो गए, तो इसके ब्लेड्स जो से होते हैं वो टूट जाते हैं। वो ब्लेड्स लोहे या स्टील के बने होते हैं, अमूमन क्रोजन रेजिस्टेंट स्टील से जो सा होता है वो बनाए जाते हैं, लेकिन वो फिर भी टूट जाते हैं। उसकी क्या वजह हो जाती है? सर एडिशनल लोडिंग। एडिशनल लोडिंग हो सकती है, दे वर बीइंग ऑपरेटेड आउटसाइड ऑफ देयर सेफ जोन। इसके अलावा उसके अंदर फटीग भी हो सकती है। इसकी एक रीज़न फटीग इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर साइक्लिक लोडिंग होती है जब वो रोटेट करते हैं। फिर आप उसके अंदर आपने बहुत सख्त कोई मटेरियल ऐड कर दिया जिसको आप ग्राइंड करने लगो, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट से भी जो है वो टूट सकते हैं। कि रोटेट जब हुए हैं उसके ऊपर कोई ऊपर से एकदम से आप मटेरियल ऐड कर दो उसके अंदर, तो दैट वाज वेरी हार्ड, तो उसके इम्पैक्ट से भी जो है वो टूट सकते हैं। लेकिन ओवर द टाइम, ओवर द यूजेज, वो उसके अंदर क्रैक्स प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके अंदर फटीग हो सकती है, उसके अंदर दूसरी तरह की फेलियर्स भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। सो कटिंग ब्लेड्स फॉर अ चॉपर और अ ब्लेंडर और व्हाटएवर, तो इसके अंदर हमारे पास जो फेलियर है वो ब्रेकेज हो सकती है, and it could be because of fatigue or additional loading। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जिस स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन की गई थी, अगर उसके ऊपर ना इस्तेमाल की जाए तो उसके अंदर फेलियर जो है वो इनएमिनेंट है, वो ज़रूर होता है। और उसको जो सा हमें उसके मुताबिक तब्दील करना पड़ेगा या रिपेयर करना पड़ेगा, या उसके अंदर एडिशनल उससे रिलेटेड जो सा होगा वो कोई नई चीज़ परचेज करनी पड़ सकती है। अच्छा, अब एक डिजाइन एग्जांपल है। दिस एग्जांपल इज गोइंग टू बी टेकिंग यू बैक टू योर सेकंड सेमेस्टर टू स्टैटिक्स। वहां पे आपने बेसिकली इसका एनालिसिस करना है यहाँ पे। सो दिस वन इज अ यूटिलिटी क्रेन। उसकी एक सिंप्लीफाइड डायग्राम जो सी यहाँ पे दी हुई है। यूटिलिटी क्रेन का मतलब ये है कि इसने कुछ लोड उठाना है। इट हैज सम सपोर्ट स्ट्रक्चर
जो कि पिन जॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो इसके नीचे एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो कि इसको अपराइट पोजीशन में मेंटेन कर रहा है। इट्स अ रिजिड बेस। देयर इज अ वर्टिकल कॉलम that transfers the load to the base. There is a horizontal boom supported by another structural member. और इसने कोई जो भी आप इसके आगे लोड उठाओगे उसको उसने नीचे ट्रांसफर करना है वजन को। ठीक है, तो ये एक यूटिलिटी क्रेन की सिंप्लीफाइड डायग्राम है। द फंक्शन इज टू रेज हैवी लोड्स ऑफ अ ट्रक, या इसके ऊपर से कोई ना कोई लोड लिफ्टिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सो द साइड व्यू शोज अस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द क्रेन, जिसके अंदर से 1 2 3 4 के तौर पे इसको लेबल किया गया है। नंबर 1 इज द स्ट्रट इन द बेस, 2 इज द ब्रेस जो कि हॉरिजॉन्टल जो बूम है नंबर 3, और नंबर 4 जो वर्टिकल सपोर्ट है इसके साथ अटैच्ड है। तो ये चार मेन इसके पार्ट्स हैं जिसको हमने एनालाइज करना है फॉर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्ट्स। देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दीज, जिसको ए बी सी डी ई एफ जी के साथ लेबल किया गया है। तो ऑब्वियसली हमें इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो आपने करना ये है कि analyze the forces that are exerted on each load carrying member, identify what kinds of stresses are there, and also pose the general shape of each load carrying member and the material from it which it has to be made. और उसके बाद stress analysis का जो है वो complete करना है for final dimensions. So in general this is a free body diagram of that structure. इसके अंदर we are given all the distances required, सारे distances यहाँ पे दिए हुए हैं, angles यहाँ पे दिए हुए हैं, forces इसके ऊपर indicated हैं। तो एक free body diagram to revise some of the features. It contains all the forces, it contains all the dimensions जो कि आपको पता है, और जो नहीं पता होती उसको आप जो सा होता है वो अमूमन किसी वेरिएबल की फॉर्म में इसी के ऊपर जो सा रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड इट्स आल्सो अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ योर प्रॉब्लम। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर लिंक्स को रिप्लेस कर दिया गया सिंपल लाइंस के साथ, और जॉइंट्स को रिप्लेस कर दिया गया सिंपल डॉट्स के साथ, और इसको जो सा वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो इंफॉर्मेशन आपको पता थी इंक्लूडिंग एंगल्स, फोर्सेस, डायमेंशंस, वो आप एक फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हो। अब हमने करना यह है कि हमने इन तमाम स्ट्रक्चरल मेंबर्स इंक्लूडिंग जो 1 2 3 4 ये चार यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं, इनके अंदर हमने फोर्सेस निकालनी है। अब कोई मुझे सबसे पहले ये बताए कि फ्रॉम योर statics course, do you remember what two force members are? Sir, reactional forces, action and reaction forces. Two force members किसी structure के अंदर वो structural members होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ दो forces act कर रही हो, but these two forces are opposite in direction and equal in magnitude. अमूमन जब ट्रस का एनालिसिस किया जाता है तो हम ट्रस के जितने मेंबर्स होते हैं उसको टू फोर्स मेंबर कहते हैं। These forces could either be compressive or these forces could be tensile. तो टेंसाइल लोडिंग के अंदर टू फोर्स मेंबर्स हो सकते हैं, कंप्रेसिव लोडिंग के अंदर टू फोर्स मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे लिंक के ऊपर जो कि मैंने यहाँ पे भी बनाया है, इसके ऊपर कहीं पे भी कोई और फोर्स नहीं है। देयर इज नो एडिशनल थर्ड फोर्थ फोर्स जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रही हो। The two force members are those members in a structure that have only two forces which are opposite in direction but are also collinear as well. तो उनका line of action same है, opposite in direction तो है
लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन जो सा है वो सेम है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो these are used to represent the internal forces in the member। तो कंप्रेसिव भी हो सकती हैं, टेंसाइल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये मेंबर ए सी जोन सा है, दिस इज अ टू फोर्स मेंबर। इसके अलावा मेंबर डी एफ जोन सा है, ये भी टू फोर्स मेंबर है। इन दोनों के ऊपर एंड पॉइंट्स पे जो सा है वो स्ट्रक्चरल जो लोड है उसकी वजह से फोर्सेस लग रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन जो कॉलम है दैट इज डेजिग्नेटेड फ्रॉम बी टू ई, जो 4 है, जो वर्टिकल सेक्शन है इसका, दिस इज नॉट अ टू फोर्स मेंबर। इसके ऊपर पॉइंट डी के ऊपर एडिशनल फोर्सेस लग रही हैं, पॉइंट सी के ऊपर एडिशनल फोर्सेस लग रही हैं। इसके अलावा पॉइंट बी और ई के ऊपर भी जो सा वो फोर्सेस हैं। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस के अलावा भी बाकी किसी दरमियान वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स लगती है। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर था जो कि 3 है, ई जी, दिस इज ऑल्सो अ मल्टी फोर्स मेंबर। यहाँ पे पॉइंट एफ के ऊपर एक फोर्स लग रही है। तो द एनालिसिस ऑफ टू फोर्स मेंबर इज मच सिंपलर देन दैट ऑफ द मल्टी फोर्स मेंबर्स। वो थोड़ा सा आसान होता है, सिंपल होता है। लेकिन इफ यू आइडेंटिफाई दोज एज टू फोर्स मेंबर्स तो आपको वहां पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। There are two reaction supports, support reactions, sorry. One is at B and one is at A। दो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, इनके दो कंपोनेंट्स हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इनके, आर ए एक्स और आर ए वाई, जो से ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इन सपोर्ट रिएक्शंस के। इसी तरह से आर बी एक्स और आर बी वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आर बी सपोर्ट रिएक्शन के। और इसका आर बी का जो एंगल है ये भी हमें गिवन है। तो कुछ एंगल्स हमें यहाँ पे गिवन है, दैट मेक्स द कंप्यूटेशन अ लॉट इजियर। तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगी हमारी कैलकुलेशंस के अंदर, सारे एंगल्स हमें पता है। अच्छा, अगला जो फोर्स एनालिसिस के अंदर स्टेप हो सकता है वो ये हो सकता है कि कुछ एनालिसिस हम कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर एज अ होल। मसलन इसमें से अभी हमने क्या क्या निकालना है, हमने निकालना है जी फोर्सेस इन ईच मेंबर। हमने निकालनी है फोर्सेस इन 1 2 3 एंड 4, इन सारों के अंदर जो फोर्सेस हैं वो निकालनी है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, उनकी डायरेक्शन निकालनी है। And I also need to find out these reaction forces RA and RB as well। तो RA और RB भी जो है वो भी हमने निकालनी है। So using this free body diagram as a whole, can I find some unknown value? आपको याद हो, if the structure in question is in equilibrium, then we have three conditions that it fulfills, और हम उन तीन conditions को use करते थे equations को। Sum of all forces, direction of all forces in y direction could be computed to 0, and sum of moments about a point could be computed to 0। अगर हमारा जो कंपोनेंट या जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम कर रहे हो, अगर वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, एंड दिस वन इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है बाय द वे, तो हम इसको इसके अंदर से इसके ऊपर तीन इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते थे इक्विलिब्रियम की टू सॉल्व सम ऑफ द अननोन फैक्टर्स। तो what can I do here that would give me maybe one or two of the unknown values? I could take, अच्छा अननोन वैल्यूज हैं क्या क्या अभी, आर ए एक्स यहाँ पे नहीं पता, आर ए वाई यहाँ पे नहीं पता, आर बी एक्स यहाँ पे नहीं पता, आर बी वाई यहाँ पे नहीं पता। एफ जो सा है ये लोड है, ये हमें अमूमन पता होगा कि जो फाइनल लोड है एट पॉइंट जी, ये शायद पता होगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि सर इससे बेहतर स्ट्रक्चर ये ना होता कि जो हमारे पास ए सी की फोर्सेस हैं, जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऑपोजिट साइड पे होता, बेस्ट लोडिंग वो बियर कर सकता। असल में ये पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके आगे अगली तरफ भी जो सा वो एक्सटेंडेड है, और ये अमूमन सर इस तरह जो के स्ट्रक्चर्स नीचे से बोल्टेड होते हैं, या नीचे से इनकी जो सी होती है कोई ना कोई सपोर्ट कनेक्शन होता है ग्राउंड के साथ, या जिस सरफेस के ऊपर ये होते हैं। सर अगर देखने में देखा जाए, देखने में ऐसे लग रहा है कि जो रिएक्शनल फोर्सेस का ज्यादा इफेक्ट है ना, वो बियर हो रही पिछली साइड से। तो अगर वो जो पीछे साइड वाला हमने स्ट्रक्चर मेंबर लगाया वो अगली वाली साइड पे लगा देते, तो सर ये ही स्ट्रक्चर ज्यादा लोड बियर कर सकता है। The maximum bearing capacity also depends on the type of the stresses and deformations in the column and the vertical and the horizontal section boom as well. Vertical support और boom पे भी depend करता है। वो basically main उसके अंदर जो concern है वो इनकी अंदर vertical support की buckling और जो boom का जो flexure है उसके ऊपर है। आप ठीक कह रहे हो, इसके अंदर डिजाइन चेंजेस हो सकती हैं, that's not the question right now. अभी हम इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, so I can take sum of moments about point B equals to 0, and I can also specify a certain sign with it as well. So I'll call clockwise moments as positive. So RAX passes through point B, line of action same है, इसको नहीं मैं कंसिडर करूंगा, RBX RBY भी नहीं कंसिडर होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा काम if I consider the structure as a whole, तो F जो कि लोड है times the distance, ये हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, माइनस RAY times the distance, ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। तो आई कैन फाइंड वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो कि RAY है। If I know RAY and I know the angle of the resultant RA, तो मैं यहाँ से RA भी निकाल सकता हूँ, और eventually I can also find out RAX as well. अच्छा जी, और इसके अंदर क्या किया जा सकता है? I can also sum the forces in y direction now, assuming that I know RAY, all the forces in a y direction, and I'm going to take upwards positive, ये भी specify करना होता है अमूमन। तो मेरे पास होगा जी RBY minus RAY equals to 0. So I can have another equation that would give me RBY, and once again if I know RBY, I know the resultant angle with RB, I can actually compute RB and RBX as well. तो यहाँ से मुझे रिएक्शन सपोर्ट्स जो सी है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Now about finding the forces in each and every member, given that I already know the reaction forces now, if I know RA अगर मैं निकाल सकता हूँ, जो कि अभी मैंने देखा किस तरह से कर सकते हैं, if I know the angle, I know RAY, I can find RA। तो यहाँ से knowing that this section 1 जो कि A to C है, this is a two force member,
तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर reaction forces would be basically the forces within this member will be equivalent to RA. Now I can consider them individually as well. तो ये individual components हैं उसी free body diagram के, जहाँ पे मुख्तलिफ forces जिस जगह पे भी लग रही हैं वो उसके ऊपर mentioned है individual components पे. So I can treat this horizontal section individually. I can treat the whole vertical column independently, and I can treat the superior two independently. Two force members तो जरा simple थे. What can I do with the other structures? R जो 3 और 4 है इनके साथ मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि इसके ऊपर से जो unknown forces हैं, अब unknown forces क्या है इस point के ऊपर? I need to find out RE. I need to find out RF. I also need to find out RD, which is basically equal to RF at this point. RB और RC मुझे पहले ही पता है. So I basically need to find out RE and RF. क्या ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है? सोचें अपने स्टैटिक्स के कोर्स में से दोबारा से सोचें जरा जल्दी से. सर सेक्शनिंग कर दें. किस तरह की सेक्शनिंग? मेथड ऑफ सेक्शंस की बात कर रहे हो? यस सर, मेथड ऑफ सेक्शन की. Method of sections and method of joints is employed on structures that only contain two force members. Method of sections और method of joints सिर्फ उन structures के लिए यूज किया जाता है जिसमें सिर्फ two force members हो. उसकी basic assumption ही method of sections और joints के पीछे ये होती है कि सारे members two force members हैं. So you can't cut through a member that is a multi-force member like 3 and 4. तो सर फिर हम इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें. You could put in equations of equilibrium on these sections. 3 और 4 के ऊपर जब आपको forces आपने वहां पे डिपिक्ट करनी है तो आप इसके ऊपर equations of equilibrium इस्तेमाल. If the structure equilibrium, then the components within those this structure should also be in equilibrium. Individual components जो कि 1, 2, 3 और 4 है. So you put in equations of equilibrium, put in sigma fx equals to 0, sigma fy equals to 0, sum of moment about some point equal to 0. इन equations के through जो सा है वो आप अपना काम ले सकते हो. So for example, to find out REY, you could take sum of moment about point F equal to 0. आपको वहां से REY जो सा वो मिल सकता है. ठीक है, इसी तरह से to find out RFY, you can take sum of forces in y direction equals to 0. If you already know REY, then you can find RFY given that you are given the load F as well. तो इन equations के साथ आप इसको solve कर सकते हो. So you can have a look at it from the book. The total forces can be computed और उसकी कोई ना कोई values आ जाएंगी. अगर load जो सा है वो 10 किलो न्यूटन्स है, F जो सा है वो 10 किलो न्यूटन्स है, तो हमने ये देखा sum of moments किया about B, we came to know about RAY and RBY by summing the forces in the vertical direction from the main जो free body diagram थी. इसके बाद हमने उनको components उनको sections में divide कर लिया और वहां से जो सा था we could find out more about RF and RE as well. You could basically analyze this whole structure for different forces that exist within the components within the component members of the structure. Forces का पता लग गया.
कि क्या क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी फॉर अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप याद है किसी को ये चीज, ये क्या होता है? सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स एंड स्ट्रेसेस की डायग्राम्स होती हैं। Shear शेयर force and bending moment diagrams. The shear force or bending moment diagrams, multi-force members के लिए, especially those that are going to be the load supporting members, जिस तरह के इस केस में कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, और हॉरिजॉन्टल जो जो स्ट्रक्चर था, बूम था 3, इनके लिए ज़रूरी है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि कितनी शेयरिंग फोर्स इसके अंदर जो सी थी और कितना उसके मुताबिक जो सा था हमारे पास बेंडिंग मोमेंट उसके अंदर से पास कर रहा था। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज आपको फिर अपना मटेरियल सिलेक्शन की तरफ जो सा होगा वो फोकस करना होगा। सो इफ यू नो दीज काइंड ऑफ stresses and moments are present within the structure, then you can select a material that has more strength, more fractional strength, जो कि इस तरह के काम के लिए यूज किया जा सकता है। फिर इससे अगली बात ये होती है कि किस शेप का वो होना चाहिए। Could it be a simple क्रॉस सेक्शन? उसका क्या होना चाहिए? क्या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, वो आई क्रॉस सेक्शन हो सकता है? वो किस तरह के क्रॉस सेक्शन के अंदर आप उसके जो स्ट्रक्चर को आप जो होगा वो डेवलप करोगे, या आपको पूरा सॉलिड चाहिए? यू डोंट नीड एनी हॉलो सेक्शन इन दैट। तो ये सारे डिसीजंस इसके बाद आते हैं डिजाइन के अंदर। So first you need to understand what kind of forces are present on the structure. Then you make the shear force and bending moment a very useful tool if you are not familiar with it. एक सॉफ्टवेयर है MD Solids के नाम से, freely available है, डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज अ फ्रीवेयर नाउ, पहले पेड होता था, फ्री हो चुका है। जिसने डेवलप किया था वो फौत हो चुके हैं, तो ओपन हो गया ये। लेकिन दिस इज अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसके अंदर से आप फोर्सेस ऐड करके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स कंप्यूट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ों को आप इसके अंदर जो है वो समझ सकते हो। सीखने का भी एक सेक्शन है, और कंप्यूट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यू कैन कंप्यूट shear force and bending moment diagrams using different tools. वहाँ पे आपको इसकी आसानी मिल सकती है। And then you need to kind of so this one is for the column, the vertical column 4, ये उसकी shear force and bending moment diagram है। And then once you have gone through that, आप इसको material selection की तरफ focus कर सकते हो, उस तरफ आ सकते हो। So I'm going to revisit some of the concepts from mechanics of materials. आपको याद हो स्ट्रेस क्या होता था? एक्सियल स्ट्रेस वाज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया इन द एक्सियल डायरेक्शन, और उसकी उससे रिलेटेड डिफॉर्मेशन को हम एक्सियल डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन कहते थे। और हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर के अंदर that we used to make some kind of stress versus strain diagrams for different materials. That gives us an idea about the yield strength, the ultimate strength, and different other values for that particular material. Shear stress क्या होता है जी? Axial stress axial force की वजह से होता है। shear stress किस वजह से होता है, और ये क्यों जरूरी है? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सर शेयर स्ट्रेस जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एरिया में चेंज लाए, वो शेयर स्ट्रेस होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर शेयर स्ट्रेस से लोडिंग ज्यादा कर देंगे, वो हमारा जो फ्रैक्चर हो जाएगा, बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, वहां से टूट जाएगी। बेसिकली shear stress और axial stress में कोई फर्क बता सकता है क्या होता है?
सर एक्सियल जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्ग द एक्सिस एक्ट करता है, जबकि जो शेयर होता है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एक्ट कर रहा होता है सर। हाँ जी बिल्कुल, अप्लाइड फोर्स के साथ इसके एक्सिस का भी फर्क होता है, और दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स। तो उससे रिलेटेड एनालिसिस आप लोगों ने किया था। शियर स्ट्रेस जो सा है वो टॉर्जनल लोड्स की वजह से भी हो सकता है, यानी कि रोटेटिंग लोड्स की वजह से, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर गिवन है। यू मे हैव एन आइडिया अबाउट हाउ दिस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू टॉर्जनल लोड। सेंटर के ऊपर आप देख सकते हो शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कम है, स्मॉलर एरोस के साथ यहाँ पे बना हुआ है। एज वी गो आउटवर्ड्स, जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता जाता है इस शाफ्ट का, जिसके ऊपर एक टॉर्जनल लोड है, तो वो शियर स्ट्रेस, so the maximum value of shear stress is dependent on the section modulus, और इसके अलावा जो सा है वो torsion itself t और कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता था, but the basic concept is that it increases with the change in radius। जैसे upwards move करोगे उसमें twist जो सा है वो twisting force की वजह से stress ज़्यादा होगा। So the outer surfaces of the shafts are experiencing more stress than the inner parts of the shaft। इन sections पे stress ज़्यादा होगा। And if it's a hollow shaft, तो कुछ इससे मिलता जुलता ही जो सा होगा वो पैटर्न है, बट द कंप्यूटेशन इज अ लिटिल डिफरेंट। ये जो जे बीच में एक टर्म आ रही है, इसकी कंप्यूटेशन थोड़ी सी फर्क हो जाती है। यू हैव टू डू अ सब्ट्रैक्शन इन द मिडल एज वेल। इसी तरह से बेंडिंग लोड्स के लिए आप लोगों ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाई थी, जिसके अंदर हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है या शियर फोर्स है उसके बारे में पता लगता है, हमें आइडिया होता है किस तरह से वो प्रोपोगेट कर रही है थ्रू आउट द सेक्शन, एंड द बेंडिंग मोमेंट एज वेल, कि कितना उसके अंदर जो से वो बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है। और आपने ये भी देखा था कि लुकिंग एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस of beams that were under bending, तो उसका कुछ हिस्सा compression के अंदर होगा। So in this case, the top part of this I beam is in compression when it's subjected to a load due to a pipe, एक force इसके ऊपर point force जो सी वो लग रही है, और कुछ हिस्सा इसका जो सा है वो tension के। The lower part of this beam cross section is in tension, and it maintains the neutral axis, a point where there is no compression or tension, उसको neutral axis कहते हैं। That may not be the geometrical axis of the cross section। ये जरूरी नहीं है कि उसके सेंटर में से पास कर रहा हो neutral axis। This may be a little different than that। तो neutral axis के about compression और टेंशन जो सी है वो दो तरह की इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो सा वो क्रिएट हो सकती है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो सी होगी वो थोड़ी सी फर्क होगी, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज वेल, बाय द वे। अच्छा, फिर आप लोगों ने आई अज्यूम के कवर किया होगा एक कॉन्सेप्ट मोहर्स सर्कल का। मोहर सर्कल के बारे में कोई बता सकते हैं कि क्या होता है, क्यों ड्रॉ करते हैं, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हाँ जी, मोहर सर्कल के बारे में कोई बता सके? वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। सर ये नहीं पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा था। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? अच्छा, चलो। मोहर सर्कल बेसिकली स्ट्रेस सेक्शंस के ऊपर जो सा होता है वो बनाया जाता है। मोहर सर्कल is basically gives us some idea about stress distribution within a certain material, और उसके अंदर से हमें पता लगता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है स्ट्रेस का। स्ट्रेस में नॉट बी अ यूनिएक्सियल स्ट्रेस,
एक डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेस होना किसी मटेरियल पे ये ज़रूरी नहीं है। तो उस स्ट्रेस का प्रिंसिपल एक्सेस क्या है, उसका जो सा है वो कितनी मैग्नीट्यूड कितना है शेयर स्ट्रेस का उसके अंदर, से में डिफरेंट इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती हैं। तो इट्स अ कंप्यूटेशनल टूल एंड अ वेरी यूजफुल वन। इसके अलावा और भी होता है, एक वॉन मीजेस स्ट्रेस होता है, वो एक फेलियर के लिए क्राइटेरिया के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो हम ये देखेंगे इन चीज़ों को डिटेल में लेटर ऑन। अच्छा जी, फॉर अ मशीन एलिमेंट और फॉर अ स्ट्रक्चर there may be different kind of loadings that it may go through. Those loadings may be prominent throughout the design life of the material or the component, या वो continuous भी हो सकती है। So for example, it may undergo static loading. Static loading का मतलब होगा कि एक ही तरह की constant loading है जो कि उसके ऊपर आपने अप्लाई करके रख के और उसके बाद छोड़ दी हुई है, या loads that are applied very slowly and lifted off very slowly can also be considered as static loads. Repeated and reversed loading, जिसको आप cyclic loading भी कहते हो। Cyclic loading का मतलब ये है कि the load is kind of cyclic in nature, उसके अंदर जो से वो positive और नेगेटिव साइकिल्स हैं स्ट्रेसेस के। जैसा कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर देखो, जितनी भी मूविंग पार्ट्स जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर हैं या रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हैं, वो सारे के सारे साइक्लिक लोडिंग के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल द पिस्टन इन एन इंजन, वो साइक्लिक लोडिंग होगी। जो कनेक्टिंग शाफ्ट होंगी, जो क्रैंक शाफ्ट होंगी उसकी, जो कैम शाफ्ट होंगी उसकी, वो सारी की सारी साइक्लिक लोडिंग के अंदर है। व्हील्स के जो एक्सल्स हैं, जो हब्स हैं, वो सारे के सारे साइक्लिक लोडिंग के अंदर हैं। शेपिंग मशीन के अंदर जो उसका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है, वो दैट इज अंडर साइक्लिक लोडिंग। द टूल में आल्सो गो थ्रू साइक्लिक लोडिंग एज वेल। फ्लक्चुएटिंग लोड्स होते हैं ऐसे लोड्स जिनकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो, बट इट मे चेंज विद टाइम, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली साइक्लिक। तो उसके अंदर उसकी लोड्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, maybe due to vibrations, maybe due to jerks, maybe due to uneven surfaces on the movement, जिसके ऊपर आप उसको यूज कर रहे हो, किसी भी वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। शॉक और इम्पैक्ट लोडिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लोडिंग जो कि बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक स्ट्राइक ऑफ अ हैमर इज द शॉक लोडिंग। आप किसी चीज पे हथौड़ा मारते हो, वो एक इम्पैक्ट लोडिंग है, शॉक लोडिंग है। ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है उसका, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। एंड देयर इज आल्सो रैंडम लोडिंग, लाइक इट मे हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोडिंग। उसमें स्टैटिक और रिपीटेड दोनों एक साथ हो सकती हैं, या फ्लक्चुएटिंग और शॉक इसके अंदर जो। एंड एज अ डिजाइनर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कैटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स। इनकी वजह से जो डिफरेंट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से आपको किस तरह के सेफ्टी फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसको हम सीखेंगे जब हम आगे अपने डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट मशीन एलिमेंट्स। इन इन इस तरह की हम क्वांटिफिकेशन को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हमारे मशीन एलिमेंट पे स्टैटिक लोडिंग है, साइक्लिक लोडिंग है, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है क्या है, तो उसकी वजह से क्या हमारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं डिज़ाइन के। तो स्टैटिक लोडिंग का जिस तरह से मैंने कहा कि इट्स अप्लाइड वेरी स्लोली एंड यूजुअली नेवर रिमूव, या फिर वेरी स्लोली अप्लाइड एंड वेरी स्लोली रिमूव। तो ये बता सकते हो ऐसे प्रोडक्ट्स या उनके कंपोनेंट्स जो कि स्टैटिक लोडिंग के अंडर हो। और बीम ऑफ द बिल्डिंग्स। घरों के बीम्स हो गए, जितने के जितने एक दफा घर बन गया, छत डल गई है, वो स्टैटिक लोडिंग है उसके ऊपर। अब वो वजन उसके ऊपर वो बेयर करेगा, वो बर्दाश्त करेगा। एक दफा लोडिंग होगी उसी तरह से ट्रांसफार्मर के सारे एक दफा उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रख दिया। अब वो मजीद उसके ऊपर एडिशनल लोडिंग नहीं है, इट्स जस्ट स्टेइंग देयर, पुटिंग इन द वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसकी वजह से जो लोड हो रहा है
दैट इसी तरह से बहुत सारे बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर स्टैटिक लोडिंग होती है, सिंपल फोर्स होती है, दैट इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ। फर्नीचर हो गया और इस तरह की डिफरेंट चीजें होगी। एंड ऑल्सो इफ यू काइंड ऑफ सिट ऑन अ चेयर, तो आप जो है उसके ऊपर एक तरह से स्टैटिक लोड अप्लाई कर रहे हो, एक दफा बैठ गए उसके ऊपर, and unless you jump on it, you are not putting in any additional impact load on it. Fluctuating loads are varying loads जो कि नॉर्मल सर्विस के दौरान प्रोडक्ट की जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। It may experience millions of cycles of stress during its life. बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, कार हो सकती है आपकी जिसके अंदर फ्लक्चुएटिंग लोड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो सकती है, आपके घर के अंदर बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है जिसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड्स हो सकते हैं, जैसा कि योर लैपटॉप बैग में बी दैट यू पिक इट अप एंड यू पुट इट डाउन, सो द लोड कंडीशंस आर डिफरेंट, द लोड्स आर नॉट आल्सो स्टैटिक एज वेल। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। So this one is a graph for a static stress or a static load, which creates a static stress. So once you put on the load, it never goes off. वो एक ही तरह से रहता है, कांस्टेंट वैल्यू का रहता है। तो स्टैटिक लोड्स की वजह से स्टैटिक स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। The stress ratio is a term that is used to describe the type of stress. The stress ratio for a static load is 1. स्ट्रेसेस के अंदर कुछ की कैरेक्टराइजेशन होती है वैल्यूज की फॉर्म के अंदर, मसलन मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस ड्यूरिंग अ लोडिंग साइकिल, मीन स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस कितना था, मैक्सिमम और मिनिमम की एवरेज होगी वो, और ऑल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड उसका कितना था, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड कितना था। स्ट्रेस रेशियो डिफाइन किया जाता है, एक एक तरीका स्ट्रेस रेशियो डिफाइन करने का, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज डिवाइड कर दो आपस में तो आपके पास स्ट्रेस रेशियो निकल आती है। तो फॉर अ स्टैटिक लोड स्ट्रेस रेशियो इज 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू भी वही है और मैक्सिमम वैल्यू भी वही है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग लोड है, साइक्लिक लोड है, रिपीटिंग लोड है, फ्लक्चुएटिंग लोड है, यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेस की वेरिएशन है वो फर्क होती है। साइक्लिक लोडिंग के अंदर सबसे मेजर कंसर्न हमारा होता है फैटीग का। फैटीग का फिनोमिना हमने देखा था, where their cracks can appear and they can propagate throughout the structure, और हमने ये देखा था फैटीग को क्वांटिफाई किस तरह से करते हैं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि फैटीग स्ट्रेंथ को या फैटीग रेजिस्टेंस को अपने डिजाइन में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जो भी ऐसे आप मशीन एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे जिस पे साइक्लिक लोडिंग होगी, उसकी फैटीग स्ट्रेंथ की कुछ डिजायरेबल वैल्यूज होंगी जो कि आपको अचीव करना अपने डिजाइन के अंदर जरूरी होंगे, अपने डिजाइन का हिस्सा आपको रखना पड़ेगा उसे। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसी वैल्यूज जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक स्ट्रेसेस उसके ऊपर सिर्फ चल रहे हैं, वहां पे आप एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को नहीं देखोगे, वहां पे आप फैटीग स्ट्रेंथ को नहीं देखोगे उस मटेरियल की। So this particular example figure shows repeated and reversal of pure oscillations, यानी कि एवरेज वैल्यू 0 है, प्योरली ऑसिलेटरी लोड्स हैं, जिसके ऊपर फैटीग स्ट्रेंथ को हमने देखा था कि जो एस एन कर्व बनते थे उसको बनाया जाता था कि एक खास लोडिंग साइकिल को मटेरियल सैंपल के ऊपर बार बार अप्लाई करते हुए उसको देखा जाता था कितने मिलियन साइकिल्स के बाद फेलियर होगा उसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस रेशियो -1 की आ रही है for a completely reverse load. So there are some maximum values of stresses, some minimum values of stresses, and some alternate values of stresses. But it may also have an average value as well. इसकी कोई एक mean value हो सकती है, ठीक है। जो फ्लक्चुएटिंग लोड्स हैं या साइक्लिक लोड हैं उसके अंदर कोई उसकी एक मीन पॉजिटिव या एक मीन नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। सो अ टेंसाइल मीन स्ट्रेस जो कि साइक्लिक होगा उसकी कोई एक बेस टेंसाइल वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी, उसके ऊपर उसकी फ्लक्चुएशंस भी होंगी।
इसी तरह से compressive mean stress would be shifted on the lower half of the y axis और उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू उस साइड के ऊपर होगी। शॉक लोडिंग जो सी होती है दैट इज a very rapid or a sudden blow or a shock or an impact, and the design of machine elements, machine members to withstand shock involves an analysis of their energy absorption capability। जितने उसके shock absorption capability बेहतर होगी, हमने 2 टेस्ट देखे थे, आपको याद हो, 4P टेस्ट and ISO टेस्ट that are used to determine the energy impact energy of a material। तो वो किए जाते हैं, उसकी बुनियाद पे मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है। तो रैंडम लोडिंग हो सकती है which can be statistically quantified। स्टैटिस्टिकली आप उसके अंदर क्वांटिफिकेशन कर सकते हो रैंडम लोडिंग के अंदर कि इतने परसेंट उसके अंदर स्टैटिक लोडिंग थी, इतने परसेंट साइक्लिक थी, इतने परसेंट उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग लोड्स थे या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस थे। स्टैटिस्टिक क्वांटिफाई कर सकते हो, बट यू कांट एक्चुअली डिटरमिन द एग्जैक्ट नेचर। जब आप एग्जैक्ट नेचर को नहीं क्वांटिफाई कर सकते तो उसको आप रैंडम लोडिंग के अंदर ले आते हो। अच्छा, नाउ विल डिस्कस द फेलियर थ्योरीज। ये अब हम कल करेंगे। आई होप कि आज ही हो जाता, लेकिन आज इसके अंदर नहीं हो सकता। फॉर नाउ आज आपका एक होमवर्क है और वो मैं आज होपफुली ये अपडेट कर दूंगा स्लाइड्स को। तो आपने क्या करना है, there is a link here that says additional task on an online resource. The topic is about understanding fatigue failure and there is a video link, एक YouTube के ऊपर वीडियो है। तो इसको आपने देखना है और समझना है कि fatigue failure होता क्या, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर चुके हुए हैं। और इसको किस तरह से जो सा है वो क्वांटिफाई किया जाता है, डिजाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। This will also be a topic of discussion tomorrow, तो इसको आप एक नज़र पहले से देख लीजिएगा।